Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope so you all are fit and fine at your home and are doing well in this tough time. So in today's video we are going to discuss about class 9th Science NCERT chapter number 8, that is motion. For your information, I would like to tell you we have uploaded many concepts of the same chapter on our channel. If you have not watched those parts, all those videos are available in the part of motion part 1, motion part 2, motion part 3 till motion part 8. If you have not watched till now, then please go to our channel and watch all those parts of the same chapter, and after understanding those concepts you will be able to understand today's video. If you are because if the basics are not clear, then you won't be able to understand the chapter from in between. Okay, सो अभी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, हमने बहुत सारे पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं मोशन चैप्टर के, पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक अपलोड कर रखा है. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देखिए, चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. कुछ डाउट है देन आप अपने डाउट अपने कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए. जो भी आपकी सजेशंस होंगी वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, राइट. So in today's video we are going to discuss about velocity time graph. So before studying this topic, I would like to tell you what is graph. Graph is why we need graph, and what is graph, why we are using the graph in physics, why we are using the graph in the mathematics, what is the importance of graph. As you all know, visuals learning plays very important role in our life. Whatever the thing that we are learning in the form of visuals gives very high impact on our mind. जो भी चीज़ें हम विजुअल की फॉर्म में लर्न करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं आपके माइंड पे. सो दैट्स वाई ग्राफ इज़ व्हाट इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. किसी भी डेटा को आपको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, देन यू कैन यूज़ ग्राफ. So in the motion, what we are doing, we are trying to study the motion of the objects with the help of graph. So for that I have told you there are various kind of graphs we need to study in this chapter, like distance time graph, displacement time graph, velocity time graph, speed time graph, acceleration time graph. There are various kinds of graphs that we need to study in this chapter. And why these are very important? Because the graphical study, the use of graph makes the learning very easy. You will be able to understand the concept in very easy manner. Okay, so that's why we need to study about the graphs. For example, if you are learning all the things, all the questions, all the analysis of the motion only by theoretical methods, then it will be a boring task for you. That the study will seems to be very boring kind of thing. But if you are analyzing the data, analyzing the motion of the objects with the help of graph, then it seems to be very interesting. बहुत मज़ा आएगा अगर आप ग्राफ पढ़ेंगे. सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर होने वाली हैं. तो ग्राफ्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर आप ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मेमोराइज रहेगा. ग्राफ इज़ अ पिक्चर फॉर्म, विजुअल्स. ओके, जस्ट वेट. सो इन दिस वीडियो we are going to discuss about the velocity time graph, and the previous graphs we have discussed in our previous videos, part 8 I think. This distance time graph we have discussed, and also all the things, all the concept related to the graphs have been discussed in our previous videos. So please watch all those parts. After that, after watching that parts, you will be able to understand this part only. Otherwise you won't be able to understand even a single thing. अगर आपने previous videos नहीं देखी हैं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, right? So this is the velocity time graph, first concept of the day. Without wasting time, let's move on to the concept. What is velocity time graph? Graph, I have told you, it is nothing. It is the geometrical relationship between the two quantities. ये क्या होता है? ग्राफ दो क्वांटिटीज़ के बीच का ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होता है, जिसको आप ग्राफ पेपर पे पिक्चर की फॉर्म में पेस्ट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं. सॉरी, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग. ओके, सो इट इज़ द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड द टाइम. जस्ट वेट. So is it clear what is velocity time graph? Velocity time graph is nothing. It is the geometrical relationship between the velocity and the time, right? अगर आप अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने वाले हो तो कुछ नहीं, आपको एक रिलेशन चाहिए बिटवीन वेलोसिटी एंड द टाइम. आफ्टर यूजिंग दैट रिलेशन और द डेटा यू कैन सिंपली प्लॉट अ ग्राफ. आप क्या कर सकते हैं? ग्राफ प्लॉट कर सकते हो बहुत ईजिली. बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, मज़ा आने वाला है, बढ़िया.
तो अभी ये आपका फर्स्ट है, इट इज़ द, अब हम क्या करने वाले हैं, एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, एक आपको कितनी एक्सिस चाहिए, मिनिमम यू विल नीड 2 एक्सिस फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ। आपको 2 एक्सिस चाहिए, एक आपको एक्स एक्सिस चाहिए, एक वाई एक्सिस चाहिए। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया है एंड वी हैव प्लॉटेड वेलोसिटी ऑन द y axis. Why we are doing so? Whenever I was teaching you the graph, then I have told you each and everything in detail. So velocity is a dependent quantity. There are two kind of quantities. One are dependent and दो other are independent. दो तरह की quantities होती हैं, एक dependent होती हैं और एक independent होती है। तो जो independent वाली quantities होती हैं उनको हम time axis प्लॉट करते हैं, ठीक है, उनको x एक्सिस प्लॉट करते हैं। जैसे टाइम क्या होता है, टाइम इज़ अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम उसको x एक्सिस प्लॉट करेंगे। और वेलोसिटी आपका कैसा होता है, वेलोसिटी आपका एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, टाइम पे डिपेंड करती है। टाइम के साथ में 0 भी हो सकती है, टाइम के साथ में इंक्रीज़ होती है, टाइम के साथ में डिक्रीज़ होती है। इसलिए कैसी क्वांटिटी है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसको कहाँ प्लॉट किया है, y एक्सिस पे। ओके, सो दिस इज अ एग्जाम्पल और यू कैन से दिस इज अ फिगर ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड एज वीटी ग्राफ। एंड मोस्टली यू नो व्हाई आई एम टेलिंग यू वीटी ग्राफ, बिकॉज इन मैनी ऑफ द बुक्स it is written that calculate this thing from by using the VT graph. So VT graph is just an acronym of velocity time graph. Don't get confused by using this term whenever they are using in the book. अगर आपको बुक में यूज़ कर रहे हैं वीटी ग्राफ तो कुछ नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक वे है राइट करने का, किसी भी राइटिंग का एक मेथड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। राइट, इज इट क्लियर? क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होता है जिसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट टाइम चाहिए और डिफरेंट टाइम पे वेलोसिटीज चाहिए। तो उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ की फॉर्म में। अभी हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे टाइप के बहुत सारी कंडीशंस देखने वाले हैं कि आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट कंडीशंस में। ठीक है, लाइक अगर आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो कैसा ग्राफ आएगा, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस को स्टडी करने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड देयर इज़ नो नीड टू लर्न ऑल एक्स्ट्रा ग्राफ्स, मैनी मोर थिंग्स, नथिंग। You need to learn only these 3 or 4 conditions. After learning these condition, you will be able to solve each and every single question of the book. जो ये 5 conditions मैं आपको बताऊंगा, इसमें सारे कुछ कवर हो जाएंगे जितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं वीटी ग्राफ, और इन सारे डेटा को यूज़ करके you will be able to solve all those question. Whichever is the book you are using, either you are using S.C. Verma, either you are using any of the books, side book or okay, so you will be able to solve all those questions very easily. So just wait, I think you can take the screenshot or pause the video to make a note of it, right? Just wait. So I think you have taken the screenshot. Now we need to discuss various conditions under which a body can move, and we need to discuss the velocity time graph that can be drawn under those conditions. So there will be 4 or 5 standard conditions you need to learn. After learning these conditions, there is no need to learn any other thing. All the concept of velocity time graphs will be very clear, and you will be easily able to solve all those questions whichever is the given in the book. जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, इन सारी कंडीशंस को लर्न करने के बाद आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे, राइट? So let's recall with the first condition. Here we have drawn a table. In this table we have taken 3 columns. So in the first column we are mentioning the condition under which the body moves. So this is the condition over here, and in the second column we are describing the graph, how the graph will be, okay, and in the third column we are plotting the graph, that how does the graph look like, okay. So the first condition is when the object moves with constant velocity. Constant velocity means the velocity of the object is not changing with time. Constant means something which is not changing with time. So in this condition, if for example, if there is a bus and it is moving at a constant speed of 45 km/h and it is not changing with time, it is moving continuously with 45 km/h only.
then what will be the graph? The graph will be a straight line. Sorry, just wait, there is a problem I think. The graph will be straight line parallel to x-axis. Just wait, the graph will be straight line parallel to x-axis. Okay, it's a writing mistake, so it happens mostly whenever we are doing many things. So how the graph will be? The graph will be just a straight line that should be parallel to x-axis. Okay, so here we have drawn this graph. Here we have plotted. If the object is moving with a constant velocity, then this kind of graph will be plotted. Okay, so please watch the first condition very carefully. एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है फर्स्ट कंडीशन में. इन द फर्स्ट कंडीशन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे. लिसन, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों सिमिलर चीज़ें हैं. आपको बहुत सारी बुक्स में स्पीड टाइम ग्राफ अलग करके स्टडी गिवन होगा और आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेपरेटली गिवन होगा, बट बोथ आर सेम थिंग्स. ओनली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस. ओके, बट नॉर्मली कंडीशंस में अगर आप देखोगे तो दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको स्पीड और वेलोसिटी कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है. तो अभी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करना है, बिकॉज दीज ग्राफ्स विल बी वेरी हेल्पफुल whenever we are deriving the kinematic equations. जब भी हम काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव करेंगे तो वहाँ पे भी हमारा वीटी ग्राफ यूजफुल होगा. क्लियर है. फर्स्ट कंडीशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मीन्स फिक्स है उसकी स्पीड, चेंज नहीं हो रही है, तो ग्राफ कैसा आएगा? द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इस तरह की लाइन है. ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. ये ओरिजिन है जहाँ पे आपका दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं. दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन. जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन. क्लियर है. चलिए, सो लेट्स रिकॉल द सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज व्हाट? व्हेनेवर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 एंड the speed of the object or the velocity of the object is increasing uniformly. Let's take an example. For example, if there is a bus which is standing on the road, okay, कोई भी ऐसी बस है जो रोड पे खड़ी हुई है, then at that time whenever it was standing the initial velocity is 0. Suddenly driver started the bus and he just and it started moving. जब भी बस स्टार्ट किया उसने तो वो मूव करना स्टार्ट करेगी and it is moving in such a way that velocity of the bus is increasing uniformly. अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है then what kind of graph will be plotted, right? So the graph will be a straight line sloping upward passing through the origin. ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्लोपिंग लाइन होगी और स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी, स्लोप अपवर्ड होगा और वो कहाँ से पास हो रही होगी? ओरिजिन से पास हो रही होगी. देखते हैं ये आपका ग्राफ है. ये लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप इज कॉल्ड एज अपवर्ड, स्लोपिंग अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, right? And in this case this slope gives you acceleration. As I have told you, this is one very important point. You need to make a note of it, because whenever we are analyzing the velocity time graph or we are doing the analysis of VT graph, then if you are finding the slope, then what you will getting? You will get the value of the acceleration, right? So this is the one of the calculation that can be made from the VT graph. ये एक calculation है जो आप VT graph की help से calculate कर सकते हो, right? So I think the second condition is clear. In second condition, the object is having initial speed 0 and after that it started moving and it should be having the speed in a uniformly increasing manner and the speed should be uniformly increasing. कैसी स्पीड होनी चाहिए? यूनिफॉर्मली मूव करना चाहिए. स्टार्टिंग में कैसा होगा? रेस्ट में होगा और जब वो मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी. अगर इस तरह की कंडीशन है तो कैसा ग्राफ आ सकता है? द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड एंड विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ये स्लोपिंग अपवर्ड स्ट्रेट लाइन होगी और ये ओरिजिन से पास होगी. ओरिजिन क्या होता है? जो भी आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट. और अगर आप इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द एक्सेलरेशन. आई होप सो द आइडिया इज क्लियर. प्लीज़ पॉज द वीडियो टू मेक अ नोट ऑफ इट.
आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके. I think the starting two conditions are very clear to you. Now let's move to the third condition. When the initial velocity is initial velocity is not zero, and then the velocity of the object is increasing uniformly. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है दैट इज इंक्रीजिंग इन अ यूनिफॉर्म वे. ओके. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ वी आर ऑब्जर्विंग पर्सन हु इज रनिंग इन द ग्राउंड. आप एक पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो जो ग्राउंड में रन कर रहा है, ठीक है. एंड whenever you started observing that person, then he was running, that means the speed of that person was not initially zero because it was already in motion. वो पहले से ही मोशन में था. जब आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ स्पीड से वो मूव कर रहा था, तो उस केस में क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी सारे केसेस में जीरो हो, नॉट पॉसिबल. ओनली व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी जीरो. अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तभी आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. अदरवाइज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है पहले से ही और आपने सडनली उसको स्टार्ट किया है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, इन दैट केस आपका इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होगा. तो इस कंडीशन में क्या होगा, और जो हमारी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो फिर क्या हो सकता है, ग्राफ देखते हैं. The graph will be straight line sloping upwards making intercept on the y-axis. जो हमारा ग्राफ है वो पहले से ही कुछ ना कुछ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा. Why? Because the object is not in the rest. Initial velocity is not zero. Initial velocity इसकी जीरो नहीं है, तो इसलिए जीरो से तो स्टार्ट नहीं होने वाला, ये यहाँ से स्टार्ट होगा. लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी. पहले से ही जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो u है, तो u से स्टार्ट होगा. एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, देन आई हैव टोल्ड यू what kind of graph you will observe. You will be able to get the graph that is sloping straight line in the upward direction. So this is the sloping straight line in the upward direction. This is the graph. Okay, and this graph is very very important because whenever we are deriving the kinematic equation, then only this kind of graph will be helpful. So please try to understand this graph very carefully. आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसी ग्राफ को हम यूज करने वाले हैं जब हम काइनेमेटिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. राइट. सो क्लियर हो गया. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है, जरूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो. कब जीरो होगी, जब ऑब्जेक्ट आपका पहले से ही रुका हुआ है. अगर स्टेशनरी है तो फिर आपकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. अगर पहले से ही कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे मैंने आपको बोला, आपने एक पर्सन को ऑब्जर्व किया पार्क में, वो पहले से ही मूव कर रहा है, पहले से ही रन कर रहा है, तो उसकी जो कुछ ना, जब जैसे ही आप उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, उस केस में उसकी कुछ ना कुछ एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस टाइम पे आप स्टार्ट करोगे ऑब्जर्व करना, उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी. और वो जीरो नहीं होगी, जो कुछ भी हो सकती है. 25 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, 10 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, 5 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. और अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा. और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट. इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट. क्लियर है. अगर आपका ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है और आपकी उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो आपका ये वाला ग्राफ होगा. राइट. नेक्स्ट कंडीशन, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली. मीन्स कोई भी कार है, फॉर एग्जाम्पल there is a car and it is moving at a certain speed, and suddenly the driver applied the brake and the speed of car getting decreased continuously and it is decreasing uniformly. Then what kind of graph will be you will get or what kind of graph you will be able to plot for this kind of motion. एक कार है, कार पहले से ही चल रही है, मतलब वो पहले से ही किसी न किसी स्पीड से मूव कर रही है, और आपने किसी भी एक्शन के थ्रू आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए, उसकी जो स्पीड है डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई. और कैसे डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है. इन दैट केस द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड. स्लोपिंग अपवर्ड कब आती है, जब आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा. उसी का वाइस वर्सा है, अगर आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली तो स्लोपिंग डाउनवर्ड आएगा. राइट. And this will be the graph. For example, the object is moving at a certain velocity v, and whenever the velocity of the object started decreasing uniformly, then this kind of graph will be
visible, or this kind of graph can be, you can plot this kind of graph. Is it clear? दो कंडीशंस और डिस्कस किया है हमने अभी, ठीक है. ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है किसी स्पीड से, और उसकी स्पीड आपने किसी भी मेथड से डिक्रीज करना स्टार्ट किया, और कैसे डिक्रीज हो रही है, अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा. इन दैट केस दिस काइंड ऑफ ग्राफ विल बी प्लॉटेड, राइट. So please take the screenshot of it, and we need to discuss one or two more conditions. After that this concept will be finished. Just wait, okay. I think the idea is clear to you, and now discuss the last condition. Last condition is when the velocity of the object is increasing non-uniformly. And this is one of the important condition, because we have studied all the condition for the till now for the uniformly accelerated motion or for uniform motion. In all those conditions the velocity of the object increasing uniformly. जितनी भी हमने conditions पढ़ी हैं, 4 conditions, उन सारे cases में हमारा जो वेलोसिटी था वो यूनिफॉर्मली या तो इंक्रीज हो रहा था या फिर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा था. बट इस वाले में हम क्या करने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्मली आपका डिक्रीज होगा. तो फिर ग्राफ कैसा आएगा, द ग्राफ विल बी अ कर्व मूविंग अपवर्ड. कैसा होगा, एक कर्व होगा और एक कैसा मूव कर रहा होगा, अपवर्ड मूव कर रहा होगा, राइट. एंड द लास्ट कंडीशन इज जस्ट रिवर्स. अगर आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, आप करके भी देख सकते हो. इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है. अगर इसकी स्पीड यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो कुछ ऐसा करवाने वाला है. That is not very important. That's why I have not written on the board, because if you are writing too much data then it will be a problem for you. अगर आपका notes precise नहीं होगा तो आपको ही problem होने वाली है. Okay? So let's recall all the concept that we have discussed till now. Okay? So the first concept that we have discussed is that is velocity time graph. What is velocity time graph? Velocity time graph is nothing. It is the geometrical relationship between the velocity and the time. Velocity और time के बीच में क्या होता है, एक geometrical relationship होता है जिसको आप ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर सकते हो, राइट. आपको प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए. मैंने आपको बताया था वेलोसिटी को हमेशा वाई एक्सिस पे क्यों प्लॉट करते हैं, बिकॉज वेलोसिटी इज डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को आप ऑलवेज एक्स एक्सिस पे प्लॉट करोगे और डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को आप ऑलवेज वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे, राइट. आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग the some standard condition under which the velocity time graph can be drawn. जो भी हम condition discuss कर रहे हैं वो 5 और 6 standard condition हैं जिनके अंडर आप velocity time graph को draw कर सकते हो. इतने टाइप के ग्राफ भी पॉसिबल हैं velocity time graph. अगर आप स्टडी करने वाले हो, if you are going to analyze velocity time graph, then only 3, 4, 5 conditions are sufficient that we have discussed in our today's video. Okay, so first condition I need to discuss. I am going to recall that first condition that we have discussed. First condition मैंने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. कैसे मूव कर रहा था, दैट वाज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड ना तो डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, तब कैसा ग्राफ आएगा, द ग्राफ विल बी पैरेलल, द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो आपको जो ग्राफ मिलेगा that will be parallel line and line should be parallel to the x axis. x axis की parallel होनी चाहिए. मैंने ग्राफ भी आपको दिखाया था. ओके, सेकेंड द कंडीशन वी हैव टेकन. हम सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था. मैंने आपको बताया था रेस्ट में पहले से वो रुका हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी. when the initial velocity is 0 and the speed or velocity of the object increasing uniformly. जैसे अभी कोई कार खड़ी थी, मैंने आपको बताया था कार की जो स्पीड है, कार पहले रेस्ट में है, फिर ड्राइवर ने उसको इंजन ऑन किया, स्टार्ट किया, फिर उसको मूव करा रहा है, कार मूव कर रही है और इस तरह से मूव कर रही है कि उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है. उस केस में कैसा आएगा, एक इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आएगी या आप बोल सकते हो स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोपिंग अपवर्ड. ओके, एक स्ट्रेट लाइन आएगी दैट विल बी स्लोपिंग अपवर्ड. अगर कोई भी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करेगा तो स्लोपिंग अपवर्ड लाइन आएगी, अगर डिक्रीज करेगा तो स्लोपिंग डाउनवर्ड आएगी. और लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी. कुछ ऐसा ग्राफ था, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ था इस तरह का. फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह का ग्राफ था. ये फर्स्ट कंडीशन की ग्राफ है. जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा पैरेलल. ये आपका कांस्टेंट स्पीड है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, राइट. सेकेंड कंडीशन में हमने डिस्कस किया था कि हमारा वीटी ग्राफ है,
तो अगर आपका ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है तो वो कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। फर्स्ट कंडीशन ये था हमारा, सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन मैंने डिस्कस किया था कि हमारा ऑब्जेक्ट है एंड इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट 0, उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं था तो और उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक रनर है जो आपका ग्राउंड में रन कर रहा है और जिस पॉइंट पे आपने उसको ऑब्जर्व किया तो जो भी वेलोसिटी होगी उस टाइम पे, जिस पॉइंट पे आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस टाइम पे उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। लेट सपोज वो 25 किलोमीटर पर आवर से या 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, 0 नहीं है। ओके, 0 नहीं थी और जो सडनली क्या हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। तो यूनिफॉर्मली जब इंक्रीज़ होगी तो फिर कैसा ग्राफ आ सकता है, मैंने आपको बताया था इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो 0 से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा तो फिर कैसा होगा देखते हैं। तो कुछ ऐसा ग्राफ मैंने आपको दिखाया था, ये आपका ग्राफ था, इस तरह से ग्राफ्स की पिक्चर्स थी। ये वाला ग्राफ कुछ विजिबल हुआ आई थिंक आपको, जस्ट वेट, ये वाला ग्राफ था, ठीक है। यहाँ पे u है और यहाँ पे v है, यहाँ पे u है, ये आपका ग्राफ था, ये थीटा था, स्लोप। ओके, सो ये आपका स्लोप है। अगर आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं वीटी ग्राफ से देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये जो स्लोप होगा इस वाले ग्राफ का, ये स्लोपिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्लोपिंग अपवर्ड, तो इस लाइन का जब स्लोप आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। लास्ट कंडीशन हम डिस्कस किया था, लास्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट आपका सर्टेन स्पीड से मूव कर रहा था और सडनली उसकी स्पीड क्या हो रही थी, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज होना स्टार्ट होगी तो फिर कैसी कंडीशन आएगी, स्लोपिंग डाउनवर्ड। मैंने आपको बताया था अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो स्लोपिंग अपवर्ड आएगी और मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, एक एंगल बनाएगी थीटा एक्स एक्सिस से, और जब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे उस लाइन का, स्लोपिंग लाइन का, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अगर स्लोपिंग डाउनवर्ड है दैट केस में स्लोप आपका नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा ये बात। अगर लाइन स्लोपिंग अपवर्ड है उस केस में स्लोप पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड है उस केस में स्लोप आपका नेगेटिव होगा, राइट। और ये वाला लास्ट कंडीशन था आपका व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई आई हैव टेकन ओनली वन कंडीशन। वेलोसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो फिर ग्राफ एक कर्व होगा, जनरल कर्व हो सकता है, और एक कर्व आपका स्लोपिंग अपवर्ड है। अगर डिक्रीज होगी तो स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, राइट। So this is all about your today's class or today's video. If you have any doubts then please post your doubt in the comment section below, and for your suggestions you can post your comments, and if you want any videos then please write the name of the topic in the comment section so that I will be able to upload the videos on the particular topic, right. So please take the screenshot of it, either you can take the parallel, you can make the parallel notes by pausing the video. Okay, so I think you have taken the screenshot or you have noted all the things in your copy. So this is all about your video. Thank you so much for watching this complete video. If you are watching the video for very first time on our channel then please subscribe to our channel and also press the bell icon and click on the all so that you will get all the notification whenever we are uploading any new videos. And I would like to request you, please share this video as much as possible because we need your love and support, because we are trying to give the free of cost content to all the students. So please share as much as possible. You are having various platforms in your phone like social media, Facebook you are having, WhatsApp you are having. So please share this video and so that all the students they can take the benefit of this video. And if you have any suggestions then please post your suggestion in the comment section below. So thank you so much all of you for watching this complete video. Thank you.